Well, in related breaking updates, the Bharatiya Kisan Union, what is being said, has admitted to the organization's role in the Prime Minister's security lapse incident in Punjab that happened yesterday in Firozpur. In a video, BKU's Surjit Singh Phool could be heard congratulating the members of his organization upon blocking the Prime Minister's convoy. The video that is being circulated on social media, Phool, who is an activist with the BKU Krantikari, could be heard lauding his fellow members for blocking the Prime Minister's cavalcade. ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਟ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10-11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। Well, that individual on your screen is from the Bharatiya Kisan Union, admitting the organization's role in the Prime Minister's security breach incident that happened in Punjab yesterday. Amandeep is joining us from Firozpur. Amandeep, what is this BKU faction Krantikari first of all, and who is this individual? Because he seems to be claiming that he is congratulating the members, those people there who had blocked the Prime Minister's road upon his arrival at the event. Amita, this is Bharatiya Kisan Union is one group that has actively participated in the farmers' protest at Singhu border, and in fact they have contributed into the manpower during that protest in a massive number. And in fact BKU Krantikari is a group that dominated Firozpur, Moga and Ludhiana, this much area, just because all the BKUs has been divided into several parts. And in fact yesterday when the entire episode happened, this is Surjit Singh Phool is a BKU Manjinder Singh Sirsa Saab is with us on the phone line. Sirsa Saab, now this is a role that is being admitted by BKU, the Bharatiya Kisan Union. Sir, ये कोई क्रांतिकारी faction है जो अपने आप को कहते हैं, and they are congratulating each other, saying that it was successful in the way that they blocked Prime Minister's cavalcade yesterday. देखिए, शायद आज वो इस चीज को महसूस नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बात नहीं है, बात किसी की गाड़ियां रोकने की नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। पाकिस्तान हमारे सबसे बड़ा दुश्मन वहां से 10 किलोमीटर दूर है और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह का प्रधानमंत्री जी का रवैया टुवर्ड्स दिख रहा है, खास तौर पर हम सबको ये याद रखना चाहिए, ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने करतारपुर का लांघा खोलने का काम किया। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा सिखों की बात जब आती है तो उनको आगे बढ़कर गले लगाने का काम करते हैं। हम ऐसी नफरत फैलाएं, इसका नुकसान देश भर के लोगों में हमारे सिखों का होगा। मुझे नहीं पता ये कौन सी यूनियन है, पर मैं उनको ये कह जरूर इस पे सोचिए कि जो आपने किया है इसका आने वाले समय में हम तक के लोगों के नुकसान है या फायदा है। हम पंजाब को प्रधानमंत्री देने आए थे, प्रधानमंत्री पंजाब को इंफ्रास्ट्रक्चर 50,000 करोड़ का देने आए थे और बहुत सारी चीजें जो पंजाब के लिए वो करना चाहते थे, बॉर्डर स्टेट के लिए जो अपनी वो सोच लेके आए थे कि पंजाब किस तरह से दोबारा खुशहाल हो सकता है, हमने उन सब चीजों पे लात मारने का काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बात एक दूसरे को बधाई देने की है। हाँ, अगर पंजाब का नुकसान करके कोई एक दूसरे को बधाई देना चाहता है, अब मैं आपको एक लास्टली बात उनको जरूर कहना चाहता हूँ, बीकेयू है जो भी है, मुझे नाम नहीं पता है। एक तरफ किसान जत्थेबंदियां कह रही हैं कि हमने चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़कर हम सरकार बनाएंगे। तो सरकार बनाकर वो अपने कामों के लिए किसके पास जाएंगे? सरकार बना के क्या कामों के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे? सरकार बना के अपने कामों के लिए देश की सरकार के पास में जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? और वो जो रवैया अपना रहे हैं, पंजाब का नुकसान कर रहे हैं, पंजाब की फ्यूचर का नुकसान कर रहे हैं, हमारी जनरेशन का नुकसान कर रहे हैं। क्या देश भर के अंदर कल संदेश गया है? मैं इसलिए जरूर उनको हाथ जोड़कर आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को भी कहना चाहता हूं,
हम लोगों ने भी बहुत कुछ देखा है। मैं खुद एक साधारण परिवार से उठकर दिल्ली पहुंचा हूं। मैंने दिल्ली के हालातों को पिछले 30 साल से बड़े नजदीकी से देखा है। इन सब चीजों का पिछले 1980 के दशक में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे खुद के निजी परिवारों के लोग इस दौरान मारे गए। ये जो सब इसी चक्कर में, इसी लड़ाई में ही मुझे छोड़कर दिल्ली पहुंचना पड़ा। ये जो सब कुछ हमने संताप भुगता है, पंजाब को उस आग की तरफ मत लेके जाइए। मैं तो हाथ जोड़कर ही आग्रह करता हूं, पंजाब का वो नुकसान मत कर दीजिए जिसकी भरपाई ना हम कर पाए। देश के प्रधानमंत्री पहली बार 70 साल में मिला जिसने नेशनल चैनल्स पर खड़े होकर खुद अपनी वीडियो डालकर ये अनाउंस किया कि मैं तीनों कानून वापस लेता हूं, मैं किसानों से माफी मांगता हूं, मैं देश के लोगों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब में उनके गुरु साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए, गुरु नानक देव जी ने जो हमें रास्ता दिखाया उस पर चलते हुए। यार, ऐसे इंसान के साथ हम अगर ऐसा करेंगे, लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अच्छा नहीं कहेंगे लोग हमें। लेकिन सिरसा साहब, एक बहुत बड़ी चूक तो हुई है ना सर सिक्योरिटी में, लेकिन वो रियलाइजेशन शायद सामने नहीं आ पा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ के सोच समझ के ही किया गया है? बिकॉज दैट्स द पॉइंट दैट द बीजेपी हैज बीन पॉइंटिंग आउट, सेइंग, एंड व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट द पंजाब सरकार सर, बिकॉज दे हैव बीन डिनाइंग एंड डिसमिसिंग दैट देयर वाज नॉट एनी सिक्योरिटी ब्रीच दैट हैपेंड। देखो, द रियलिटी इज उन लोगों ने जगह जगह किसानों को इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से बिठाया था कि उस वेन्यू के अंदर किस बीजेपी के कार्यकर्ता लोग, बीजेपी के और पंजाब के लोग जो बीजेपी के और पंजाब के लोग जो प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं वो पहुंच ना पाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, झगड़े हो, लोग वापस मुड़े। उन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली तरीके से हर सड़क को ब्लॉक करवाया था ताकि ये रास्ते ब्लॉक रहेंगे तो पब्लिक जो गैदरिंग सुनना चाहती है प्रधानमंत्री जी को सुन नहीं पाएगी। इस सब के चलते ही ये सारी सड़कें इस तरह से ब्लॉक कर चुके थे कि जब प्रधानमंत्री के रूट की भी जानकारी मिली, अब वो उनके पास वो रास्ता ब्लॉक था। उन्होंने बजाय कि कोई ऑल्टरनेटिव रूट देने के, उन्होंने इस चीज का लाभ उठाया कि लोग तो बंद ही पड़े हैं, अपने आप प्रधानमंत्री को वापस मुड़ना पड़ेगा। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि देश के प्रधानमंत्रियों किसी एक पार्टी के नहीं है, कितना बड़ा खतरा बन चुका है उनके ऊपर, और ऐसे में पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी उस रोड के ऊपर पिछले पौने 2 सिरसा घंटे साहब, आप अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो प्रीतपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनके पास भी मैं चली जाती हूँ। प्रीतपाल सिंह जी, जहां तक अभी जवाब मांगा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि आखिरकार चूक हुई है, तो उसके बारे में पंजाब सरकार जवाब दे, पंजाब पुलिस जवाब दे। देखिए मैम, एक्चुअली मैं पंजाब कांग्रेस से नहीं हूँ, पंजाब लोक कांग्रेस से हूँ, ठीक है। पहले पंजाब कांग्रेस का पक्ष रखता था, बट इनकी नीतियों के कारण मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ हूँ। जी सर। हाँ, तो जो जहाँ पे ये प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया है, मैं आपको एक और बड़ी अपडेट देता हूँ, ये कि उससे आधे से पौने घंटे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का कॉन्वे वहां से निकलने वाला था और पुलिस ने रोड डिवर्ट करके हमें दूसरे रास्ते से निकाला। मैं उनके साथ था तब। सो इन्होंने साजिश करते हुए, पंजाब पुलिस का मदद लेते हुए, पंजाब कांग्रेस के लोग थे वहां पे, क्योंकि किसान नहीं थे, वो किसानों के एक झंडा रखाया गया, उनके कुछ लीडरों को बुगराया गया। अगर किसानों की मांगे तो मानकर वो वापस पंजाब आए हैं। अगर आंदोलन चलता होता और ऐसा कुछ होता तो हम भी कहते भैया कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, इस कारण लोगों में रोष था। बट किसानों की तो मांगे पूरी हो चुकी हैं सेंटर के द्वारा। अब तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ कि 17,000 रुपया हमें, 17,000 रुपए का हमें जो मुआवजा देना था वो नहीं दिया गया। 360 रुपए गन्ने का भाव करके गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो 60 रुपए जो ऊपर वाले हैं वो मिल नहीं रहे हैं। जो किसानों का कर्जा 1200 करोड़ का और माफ होना था जो कैप्टन अमरिंदर सिंह करके गए थे, वो रिलीज नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट ने। इन शर्तों के ऊपर तो वो पंजाब कांग्रेस और पंजाब सरकार का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ तो विरोध ही नहीं था। ये तो कल हमारे माथे पे इन्होंने कलंक लगा दिया पंजाब के लोगों, पंजाबियत के ऊपर, क्योंकि पंजाब में तो अगर कोई दुश्मन भी आया तो पंजाबियों ने उसे भी जी आया कहा है, वेलकम किया है उसका। ये तो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी टू करवा दी इन लोगों ने। जो हमारा गेस्चर है, पंजाबियत का गेस्चर है, उसको धब्बा लगा है। इंटरनेशनल मीडिया क्या हमारे बारे में बातें कर रहा है? अगर देश का प्रधानमंत्री अपने एक राज्य में जा नहीं सकता जहाँ पे सारी पुलिस प्रोटेक्शन उसके साथ है, फिर वो डीजीपी क्या जिम्मेदारी है उनकी? सारा रूट था, 3 दिन रूट बनाए गए थे, मैं उन रूट से खुद गुजरा हूँ
और जहां पे मुदगी से आगे जाके फ्लाईओवर तो पहले क्लोज था, इन्हें पता था, तो आगे वो कॉन्वे कैसे पहुंचा उसके, जब अल्टरनेटिव रूट था फिरोजपुर के लिए, हम उस रूट से गुजरे हैं। पहले प्रोग्राम था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को रोका जाना है, हमने 3 काफले बनाए इसीलिए कल कि कैसा कोई घटना न घट जाए, क्योंकि उनकी साजिश पहले से बेनकाब हो चुकी थी और उसके राजनीति का लाहा उन्होंने मोदी जी को टारगेट करके बनाया है। दैट इज, अब जितना हम उसकी निंदा करें उतनी कम है, क्योंकि पंजाब को कल सौगातें और हम ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी सिक्योरिटी के साथ अगर ऐसे ब्रीच होता है तो सर बहुत बड़ी बात होती है और उस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। प्रीतपाल सिंह जी, apologies sir, but I'm taking your name correctly, from the Punjab Lok Congress. Thank you very much sir for joining.